شہر اقتدار میں دنیا کے متعدد سفارتخانوں نے اپنے عملے کے بچوں کی ابتدائی تعلیم و تربیت کی غرض سے ایمبیسی اسکول کھول رکھے ہیں، خاص طور پر ان ممالک نے جن کے عملے کی تعداد زیادہ ہے اور طالب علم بھی کافی تعداد میں ہیں۔ یہ سلسلہ دنیا کے تقریباً سبھی ممالک میں موجود ہے اور بظاہر کسی حوالے سے بھی سفارتی آداب اور قواعد کے خلاف نہیں، مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان اسکولوں میں محض درس و تدریس کا کام ہی نہیں ہوتا، بلکہ ان اسکولوں کے عملے کے کئی ارکان کو تعلیمی سرگرمیوں کی آڑ میں جاسوسی کے کام پر بھی مامور کیا جاتا ہے۔ خفیہ ایجنٹ اسی طرح کے دوسرے اداروں مثلاً ایئر لائنز کے دفاتر، ہوٹلوں، لینگویج سینٹرز، ایوان ہائے ثقافت و دوستی اور مراکز اطلاعات میں بھی تعینات کیے جاتے ہیں۔ ہمیں اپنے معمول کی چیکنگ کے دوران اسلام آباد میں قائم انڈین ایمبیسی اسکول کی ایک مس وینا کی سرگرمیاں کچھ مشکوک نظر آئیں۔ مسلسل نگرانی کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ اسکول کی تدریسی سرگرمیوں میں تو وہ کم حصہ لیتی ہے، مگر اکثر اوقات شکار کی تلاش میں اسلام آباد کے چند گھروں میں دکھائی دیتی ہے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ مس وینا کا بھارتی سفارتخانے کے ڈیفنس اتاشی اور را کے فرسٹ سیکرٹری سے مستقل رابطہ ہے۔ یہ دونوں پاکستان کے دفاعی اور ایٹمی راز معلوم کرنے کے درپے تھے اور بھارتی ماتا ہری ان کی ہدایات پر کام کرتی تھی۔ مس وینا کی عمر 25 یا 26 سال کے لگ بھگ تھی، مگر دیکھنے میں وہ 18-19 سال کی بے ضرر اور معصوم سی لڑکی لگتی تھی۔ ستواں ناک، کتابی چہرہ، کھلتا ہوا رنگ، انتہائی متناسب جسم، چال ڈھال میں ایک خاص قسم کا بانک پن اور گفتگو کا مخصوص انداز اس کے خطرناک ہتھیار تھے۔ اس کی خاموش نظریں بھی گہرائیوں تک سرایت کرتی محسوس ہوتی تھیں۔ اس کے چہرے پر ہمہ وقت ایک ہلکی سی مسکراہٹ تو رہتی، لیکن اس کی نظروں میں ایک ایسی اداسی بھی دکھائی دیتی تھی جیسے صدیوں پرانا ایک محل اپنی لٹی ہوئی تابناکیوں، خوشیوں اور روشنیوں کے لوٹ آنے کے کربناک انتظار میں ہو، جسے وقت کے بے رحم ہاتھ لمحہ بلمحہ ریزہ ریزہ کر رہے ہوں، یا جیسے ایک تھکن سے چور چور مسافر جو اپنی منزل کا نام بھی بھول چکا ہو مگر پھر بھی ایک لامتناہی سفر پر ہو۔ مس وینا کا بدن اور روح بھی ایک دوسرے سے جدا جدا گمسم کسی انجانی منزل کی تلاش میں رہتے۔ مزید معلومات کے لیے ہم نے ایک پاکستانی ہندو لڑکے کو انڈین ایمبیسی اسکول میں داخلہ دلوا دیا۔ اس کی ماں نے ہماری ہدایات پر یہ ظاہر کیا کہ وہ اپنے بچے کی تعلیمی سرگرمیوں کے بارے میں بے حد متفکر ہے اور وہ ان سرگرمیوں کے بارے میں آگاہ رہنا چاہتی ہے۔ وہ ہر دوسرے تیسرے روز اسکول جانے لگی اور یوں آہستہ آہستہ مس وینا کے ساتھ دوستی استوار کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ جلد ہی ان کی دوستی اسکول کے حدود سے نکل کر گھر اور مارکیٹ تک آ گئی۔ وہ متواتر ایک دوسرے کو ملتیں، شاپنگ اکٹھے کرتیں، سینما جاتیں اور اسلام آباد کے تفریحی مقامات پر اکٹھے گھومنا پھرنا بھی ان کا معمول بن گیا۔ وینا اسی محترمہ کو شکار کر کے اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہ رہی تھی اور یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ معصوم شکار خود اس کا شکاری ہے۔ کچھ ہی عرصے بعد ہمارے اس شک کی تصدیق ہو گئی کہ مس وینا کا اسکول کی تدریسی سرگرمیوں میں کوئی کردار ہی نہیں۔ وہ بھارتی جاسوس ہے اور ہمہ وقت اپنے آقاؤں کے حکم کی بجا آوری میں مشن کے لیے تیار رہتی ہے۔ اب ہماری نظریں اس کی آمد و رفت اور روزمرہ کی مصروفیات پر مذکور ہو گئیں اور ہم اس انتظار میں تھے کہ وینا کے پھینکے ہوئے کانٹے میں کون سی پاکستانی مچھلی پھنستی ہے۔ ایک روز بھارتی ایمبیسی کی جانب سے اسلام آباد کے ایک بڑے ہوٹل میں کمرہ بک کروایا گیا۔ یوں تو یہ ایک معمول کی بات تھی، مگر سفارتخانے کے مہمانوں کی شناخت اور ان کے بارے میں جاننا ہمارے فرائض میں شامل تھا۔ ہوٹل سے ہمارے آدمی نے اطلاع دی کہ مس وینا بھارتی ڈیفنس اتاشی کی گاڑی میں سفارتخانے کے عملے کے ایک رکن مسٹر کھنہ کے ساتھ، جو را کی ٹیم کا ممبر بھی تھا، ہوٹل پہنچی ہے اور کھنہ وینا کو ہوٹل کے کمرے میں چھوڑ کر لابی میں بیٹھا شاید کسی مہمان کا انتظار کر رہا ہے۔ ہم نے ایئرپورٹ سے رابطہ کیا تو معلوم ہوا کہ اس وقت کوئی جہاز نہیں آ رہا اور نہ ہی بھارتی سفارتخانے کی کوئی کار ایئرپورٹ گئی ہے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ مہمان کوئی یہیں کا ہے۔ ہم نے سیٹی بجا دی اور ہماری ٹیم نے ضروری ساز و سامان کے ساتھ اپنی پوزیشن سنبھال لی۔ چند لمحوں بعد پرویز نامی ایک پاکستانی نوجوان جس کے چہرے سے سراسیمگی اور خوف ٹپک رہا تھا، ہوٹل کی لابی میں داخل ہوا۔ مسٹر کھنہ نے آگے بڑھ کر بڑی گرمجوشی سے اس کا استقبال کیا اور کہا، آئیے پرویز صاحب، ہم تو آپ کے دیر سے منتظر ہیں، اور اسے اس کمرے میں لے گیا جہاں وینا آنے والے لمحوں کے تانے بانے بن رہی تھی۔ وقت ضائع کیے بغیر ہمارے ساتھیوں نے پہلے سے طے شدہ پروگرام کے مطابق کپڑے تبدیل کیے اور مختلف روپ دھار کر اپنے اپنے ڈیوٹی کے مقام پر پہنچ گئے۔ توقع کے عین مطابق کمرے سے روم سروس کو انٹرکام پر چائے اور سینڈوچز کا آرڈر دیا گیا۔ ہمارا تربیت یافتہ ویٹر فوری طور پر چائے کی ٹرالی لے کر روانہ ہو گیا جس میں ایک چھوٹا سا ٹرانسمیٹر نصب تھا۔ واپسی پر ویٹر نے بتایا کہ وینا اپنے مہمان پر اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے بے چین ہے، مگر اس کا مہمان سہما ہوا ہے اور شرمیلا سا ہے۔
जबकि मिस्टर खन्ना दलालों का रवायती किरदार अदा कर रहा है और इसकी कोशिश है कि मिस वीना अपने मेहमान के तमाम हवास पर कब्जा कर ले। बहरहाल हम ट्राली में लगे ट्रांसमीटर की मदद से इन लोगों की गुफ्तगू सुन रहे थे और इसे रिकॉर्ड भी कर रहे थे। कुछ ही देर बाद खन्ना कमरे से बाहर आ गया और अपनी कार में बैठकर वापस एम्बेसी चला गया। इसके चेहरे की बशाशत बता रही थी कि शिकार पंजे में आ चुका है और चंद ही लम्हों में वीना इसका झटका करके इसका कबाब बना लेगी। बहरहाल मिस वीना और परवेज़ की गुफ्तगू रस्मी तारफ़ तक ही महदूद रही। परवेज़ के अंदाज से ज़ाहिर हो रहा था कि वो खुलकर अपने जज्बात का इजहार नहीं कर रहा और घबराया हुआ है, मगर वीना इस महम को सर करने के लिए इस पर ताबड़तोड़ और ख़तरनाक हमले कर रही थी। वीना के लिए अपने आला अफसरान पर अपनी कारकर्दगी साबित करने का शायद ये बेहतरीन मौका था और वो किसी सूरत भी ये मौका हाथ से नहीं देना चाहती थी। कुछ ही देर बाद ट्रांसमीटर से तेज सांसों की आवाज़ आने लगी और बिलाखिर ये तलातम थम गया। परवेज़ शायद ज़िबा हो चुका था। परवेज़ तकरीबन आधा घंटा कमरे में रहा और वीना को अपने एड्रेस लिखवा कर और वस्ल का एक और वादा लेकर नीचे आ गया, मगर इसकी हरकत और सकनात से साफ ज़ाहिर हो रहा था कि इसकी घबराहट जूं की तूं है। होटल से निकलते ही हमने इसका पीछा किया और इसे अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने रेस्ट हाउस ले गए। एक लम्हे में इसके सारे हसीन ख्वाब मुंतशिर हो गए। तफ्तीश शुरू हुई तो वो अपनी शनाख्त कराने से हिचकिचा रहा था। नतीजतन हमने वीना के साथ इसकी गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग इसे सुनाई तो इसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। इसने बच्चों की तरह रोना शुरू कर दिया और माफ़ी मांगने लगा। इसने बताया कि मैं पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में इंजीनियर हूं और खन्ना के साथ मेरी मुलाकात लाहौर से इस्लामाबाद आते हुए एक बस में हुई थी। हम बहुत जल्द दोस्त बन गए और खन्ना ने मुझे एक खूबसूरत हिंदू लड़की से मिलवाने की पेशकश की, जिसे मैं ठुकरा ना सका। हमारे लिए इसमें हैरत की कोई बात ना थी कि भारतीय खुफिया अदारों ने चाणक्य की तालीमात के मुताबिक रंडियों से जासूसी का काम लेने को भी अपने कल्चर का हिस्सा बना रखा था। इस खेल को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास और भी बहुत रास्ते थे। पहले हमने सोचा कि परवेज़ से डबल एजेंट का काम लिया जाए, मगर बाद अज़ां इसकी मुलाजमत की हसास नोयत को देखते हुए हमने अपना इरादा मनसूख कर दिया। ताहम इस वाक़े की एक रिपोर्ट इसके मुतल्लिका महकमे को भिजवा दी गई और परवेज़ को मुलाजमत से फ़ारिग कर दिया गया। बहरहाल परवेज़ से मुलाकात के बाद मिस वीना अभी होटल के कमरे में मौजूद थीं। या तो वो खन्ना का इंतज़ार करती या फिर एम्बेसी फ़ोन करती कि होटल में मेरी ड्यूटी पूरी हो गई है और मुझे यहाँ आकर ले जाया जाए। अब हमारे पास होटल का मुहाज ही था और वक्त बहुत कम। वीना तक रसाई हासिल करना ख़तरे से खाली न था। वो हमारे किसी भी अहलकार की कमरे में मौजूदगी की सूरत में अलार्म बजा सकती थी और हमारे लिए एक पेचीदा सफारती तनाज़ा पैदा हो सकता था। दूसरी जानिब ये एक ऐसी सूरत हाल थी जिससे फ़ायदा ना उठाना हमारी खुफिया रवायात के ख़िलाफ़ था। किसी भी रिस्क की सूरत में कामयाबी की तवक्को 50-50 थी। ताहम मिस वीना की शख्सियत और किरदार को सामने रख कर हमें इस बात का यकीन था कि अगर इस सूरत हाल में महारत और चापगदस्ती से काम लिया जाए तो इस भारतीय माता हरी को शीशे में उतारना मुश्किल ना होगा। हमारे लिए ये $1 मिलियन चांस था जिसे आजमाया जा सकता था। हमने लम्हों में हतमी फ़ैसला किया और कुछ ही देर बाद हमारे रूम सर्विस वाले इसी वेटर ने कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। बज़ाहिर वो चाय की ट्राली वापस लेने गया था। प्लान के मुताबिक इसने कमरे का दरवाज़ा खुला रखा, वीना से रस्मी सलाम दुआ की और इसी असना में हमारा केस अफसर भी कमरे में पहुंच गया। ये हिकमत अमली इसलिए इख्तियार की गई थी ताकि मिस वीना अपने सफारत खाने फ़ोन न कर सके। अगर खन्ना खुद आता तो इस सूरत हाल के लिए भी हमारा एक आदमी तैयार था। मंसूबे के मुताबिक केस ऑफिसर होटल के सिक्योरिटी एग्जेक्टिव के रूप में कमरे में दाखिल हुआ, अपना तारफ़ करवाया और होटल की सर्विस के बारे में मामूल की गुफ्तगू करने लगा। वीना को ज़रा बराबर शक ना गुजरा, इसलिए सब मामूल की बात थी। वो इंतहाई मुतमईन और खुशगवार मूड में थी। हमारे अफसर ने बात को आगे बढ़ाते हुए भारतीय साड़ियों फिल्मों के बारे में गुफ्तगू शुरू कर दी। वीना ने इस गुफ्तगू में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी और हमारे ऑफिसर को बैठने के लिए कहा। वेटर ट्राली लेकर चला गया और गुफ्तगू का मौजू ज़ाती मालूमात तक आ गया। हमारा वार कारगर साबित हुआ। वीना जल्द ही हमारे केस ऑफिसर को तुम कहने की हद तक आ गई। वो बातों में इस कदर महव हो गई कि इसे सफारत खाने फ़ोन करना भी याद ना रहा। इधर खन्ना और इसके अफसरान बाला यकीनी तौर पर इस बात पर जामे मुसर्रत पी रहे होंगे कि बिलाखिर इन्होंने पाकिस्तानी एटॉमिक एनर्जी कमीशन से एक बड़ी मछली को अपने जाल में फंसा लिया था। आहिस्ता आहिस्ता हमारे ऑफिसर का लहजा तब्दील हो गया और इसकी गुफ्तगू मानी खेज होती गई।
जब वीना को एहसास हुआ कि होटल के इस ऑफिसर को वीना की इस कमरे में आमद और इसके मकासद से पूरी तरह आगाही है, तो वीना की सूरत एक ऐसे मजबूर, बेकस और भूखे बच्चे की सी हो गई जिसे बेकरी से डबल रोटी चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया हो। इसकी आंखें भर आईं और इसकी आवाज़ किसी गहरे कुएं से आती हुई महसूस होने लगी। वीना ने अपनी दास्तान हयात सुनाना शुरू कर दी। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद हूँ। मेरे वालिदैन ने मेरी परवरिश अपने इंतहाई गुर्बत और कसम पुरसी के बावजूद बड़े नाजो नैम से की। मैंने 2 ही साल पहले ग्रेजुएशन की है। जहेज़ की लानत से तो आप अच्छी तरह आगाह हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में भी ये लानत अभी तक मौजूद है, जिसकी वजह से हज़ारों लड़कियां अपने बालों में चांदी के तारों का इजाफा किए माँ बाप की दहलीज पर बैठी हैं। भारत में भी बहुत सी लड़कियां माशरे की इस दलदल में फंसी हुई हैं। मेरा ख्याल था कि तालीम मुकम्मल करने के बाद टीचर बनूंगी, मगर कोशिश के बावजूद मुझे नौकरी न मिल सकी। फिर एक रोज़ मेरी एक दोस्त के खामद ने मुझे अपने एक दोस्त से ये कहकर मुतारिफ़ करवाया कि ये एक आला सरकारी अफसर है और तुम्हारे लिए मुलाजमत का बंदोबस्त कर सकते हैं। बाद में मुझे इल्म हुआ कि इनका ताल्लुक़ भारतीय इंटेलिजेंस से है। इन्होंने मेरा सरसरी सा इंटरव्यू लिया और मुझे बताया कि मैं तुम्हारे लिए नौकरी का इंतज़ाम कर सकता हूँ, मगर ये नौकरी भारत में नहीं, पाकिस्तान में भारतीय एम्बेसी स्कूल में होगी। ये अल्फाज मेरे लिए इंतहाई खुशकुन थे। मेरे लिए किसी दूसरे मुल्क में जाने का तसव्वुर ही इंतहाई दिलकश था। इन्होंने मुझसे कहा कि नौकरी का बंदोबस्त तो हो गया है, मगर पाकिस्तान चूँकि हमारा दुश्मन मुल्क है, इसलिए तुझे चंद माह के लिए सिक्योरिटी ट्रेनिंग पर जाना पड़ेगा। मैं इसके लिए भी तैयार हो गई। दरअसल मुझे खुशी इस बात की थी कि मुझे बैरून मुल्क मुलाजमत मिल रही थी और इसके साथ ही साथ मुझे एक ऐसी सरजमीन देखने का मौका भी मिल रहा था जिसके बारे में मैंने बहुत कुछ सुन रखा था। चंद रोज़ बाद एक शख्स हमारे घर आया। इसने मुझे तकर्री का ख़त दिया और कहा कि अगले रोज़ तुझे सिक्योरिटी ट्रेनिंग स्कूल ले जाने के लिए मैं खुद आऊँगा। वो हस्बे वादा अगले रोज़ फिर आया और मैं अपने वालिदैन से रुखसत होकर इसके साथ गाड़ी में सवार हो गई। एक तवील सफ़र के बाद हम अपनी मंजिल पर पहुँचे। ये एक पुरअसरार सी इमारत थी और देखने में स्कूल या तरबियत गाह हरगिज़ दिखाई नहीं देती थी। मेरे अलावा वहाँ 4 और लड़कियाँ भी मौजूद थी। जब कोर्स शुरू हुआ तो मालूम हुआ कि इसमें किसी टीचर की नहीं बल्कि जंग की तरबियत दी जा रही है। चंद ही दिनों में पता चल गया कि असल में हम टीचर नहीं बल्कि जासूस बनाकर भेजी जा रही हैं। हमारे तरबियती सिलेबस में जिस्मानी वर्जिश, हथियारों के इस्तेमाल का तरीका और ऐसे लेक्चर शामिल थे जिनका मकसद पाकिस्तान के खिलाफ शदीदी नफरत पैदा करना था। अलावा जी अपने शिकार को जहनी तौर पर अपना ताबे बनाना और खुफिया राज मालूम करना भी हमारी तरबियत का अहम हिस्सा था कि किसी भी मजबूत से मजबूत एसाब के मर्द को किस तरह अपना असीर बनाया जा सकता है। हमें जिनसी इख्तलाक के मुख्तलिफ तरीके भी बताए जाते हैं ताकि हमारी कारकर्दगी में कोई कसर ना रह जाए। दर हकीकत हमें बाइज़्ज़त तौर से जिस्म फरोशी की तरबियत दी गई और हमें बताया गया कि एक कामयाब जासूस बनने के लिए अपने जिस्मानी खूबसूरती को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना ही असल हुनर है। हमें से किसी को भी इस तरबियत से इत्तफाक नहीं था, मगर अब हमारे पास वापसी का कोई रास्ता नहीं था। हम पूरी तरह अपने मौसनों के जाल में फंस चुकी थीं। मैं जानती हूँ कि पाकिस्तान में जो कुछ भी कर रही हूँ अखलाकियात की मरोजा ज़वाबित के ख़िलाफ़ है और कोई भी बाज़मीर इंसान इस दलदल में कूदने की जुर्रत नहीं कर सकता। मगर मैं ये भी जानती हूँ कि अब मेरा अपना वजूद, मेरे वालिदैन, मेरा घर, मेरा ज़मीर, मेरी ख्वाहिश, मेरे मुस्तकबल के सुहाने ख्वाब सब कुछ दाव पर लग चुका है। अब अगर मैं चाहूँ भी तो इनके चंगल से नहीं निकल सकती और जब तक मेरे जिस्म में ज़रा सी भी कशिश बाकी रहेगी ये लोग मुझे इस्तेमाल करते रहेंगे। वीना वैसे बात कर रही थी जैसे दूर वीरानों में भटक रही हो और इसे कोई रास्ता ना सूझ रहा हो। अपनी कहानी सुनाते सुनाते इसने कहा, हद तो यह है कि इस तरबियत के दौरान हमारे इंस्ट्रक्टर भी हमारे जिस्मों को अपनी मकरू ख्वाहिशात की तकमील के लिए रोनते रहे और हमारी तरबियत मुकम्मल होने तक हमारी इस्मत की चादरें बार बार तार तार होती रहीं। तरबियत का यह हिस्सा रात के खाने के बाद शुरू होता था। हमें बारी बारी मुख्तलिफ मर्दों के साथ जिनसी इख्तलात पर मजबूर किया जाता था। हमें अमली तौर पर मर्द की हैवानी जबलत पूरी करने का सलीका सिखाया जाता था। शुरू में तो हर अमल हमारे लिए एक मुस्तकिल अजाब की मानंद था और हमने इस पर कई बार एहतजाज भी किया, लेकिन इनका कहना था कि तुम्हारे लिए ये तरबियत इंतहाई ज़रूरी है और तुम्हें मुल्क कौम के अजीम तर मुफाद के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए हम वक्त तैयार रहना चाहिए। वीना की कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ। हमने बड़ी महारत से वीना की टूटी फूटी शख्सियत को बहाल किया और इसे वो तमाम इज्जत और गैरत मुहैया की जो वो खो चुकी थी। वीना ने जब हमारे हुस्न सलूक का अपने हिंदू आकाओं के किरदार से मुवाजना किया तो इसके लिए ये फैसला करना इंतहाई मुश्किल था कि इसे अपने नाम नहाद वतन परस्त दोस्तों के बजाय अपने दुश्मनों का साथ देना चाहिए। नफ्सियाती तौर पर हमने इस भारतीय माता हरी के कुचले हुए ज़मीर में ज़िंदगी की नई रूह फूंक दी। हमने इसे पैसे दिए, भारत में इसके वालिदैन की देखभाल का जिम्मा भी लिया।
इसे इज़्ज़त नफ्स दी और जिस्मानी और रूहानी पाकीज़गी के सबक दिए। चनाचे वीना दिलो जान से पाकिस्तान की हो गई। डबल एजेंट की हैसियत से वीना ने हमारे लिए काबिल कदर खिदमात अंजाम दी। इसने हमारे बाज़ मंसूबों की तकमील में हमारा भरपूर साथ दिया और अनथक मेहनत की। वीना की वजह से हमें हर वक्त भारतीय सफारत खाने में होने वाले वाक़यात, हालात, इनके खुफिया एजेंटों, इनके तरीक़ाकार और अहदाफ की खबर रहने लगी। इन इतलात की बुनियाद पर हमने इनके बहुत से ऐसे मंसूबों को खाक में मिला दिया जिनकी तफसील यहाँ बयान नहीं की जा सकती। वीना को जब पाकिस्तान से वतन वापसी के अहकामात मसूल हुए तो वो बेहद अफसरदा और गमगीन थी। वो हमेशा के लिए पाकिस्तान में रहने, यहाँ शादी करने और इस्लाम कबूल करने तक को तैयार थी, मगर हम इसके लिए कोई मुनासिब शोहर तलाश न कर सके। वो दिल पर भारी पत्थर रखे पाकिस्तान से रवाना हो गई। बहरहाल पाकिस्तान से जाने से पहले वो एक मुकम्मल इंसान ही नहीं बल्कि इज़्ज़त व वक़ार के ज़ेवर से आरास्ता और माली तौर पर इंतहाई खुशहाल हो चुकी थी कि हमें यकीन है कि इसने भारत पहुँचते ही अपने आप को राह से जुदा कर लिया होगा और अब कहीं बाइज़्ज़त ज़िंदगी बसर कर रही होगी। तो नाज़रीन, ये दास्तान एक मारखोर की है जो मैंने आज उसकी ज़ुबानी आपको सुनाई है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो ने बेहद महसूस किया होगा। अगर ऐसा है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मेज़बान मोहम्मद अनीस आरिफ को दें इजाज़त। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।